So am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. So in economizer we are preheating the water. उसके बाद इकोनोमाइजर से प्रीहीटेड वाटर कहां पर जा रहा है? एक इधर जा रहा है एक तुम्हारा ड्रम. दिस इज कॉल्ड द स्टीम ड्रम. This is called the steam drum. Okay, economizer से water through pipe it will go into the steam drum. After that steam drum क्या हो रहा है? देखो इसके नीचे ठीक यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो कोल आया था, जो कोल मैंने दिया था, कोल बर्न हो रहा है. कोल बर्न in the burner. This is called the burner. There are different types of burner that we will discuss later. This is called the burner. Okay, ये बर्नर सिंपल कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल कोल जो है नीचे इधर जो कोल है उसको बर्न कर रहा है और फिर हीट प्रोड्यूस कर रहा है. एंड दिस इज द हीट प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द दिस येलो जो है दिस इज कॉल्ड द हीटेड वेस्ट गैस. ओके, हीटेड दिस येलो वन. नाउ स्टीम ड्रम में तुम्हारा वाटर आ चुका है, प्रीहीटेड वाटर स्टीम ड्रम में आ चुका है. अब क्या होगा? दिस वाटर steam drum से this water will be inside the pipe through like this. इधर से steam drum से water आएगा in through this pipe and फिर इधर अंदर जाएगा. ठीक है, इधर है water wall. This is called the water wall. जैसे blue वाला हम लोग देखे थे, that is the water wall. Different types of boiler यहाँ पर है. इसमें से ये pipe type boiler में, tube type boiler में ये water इधर से आ रहा है. This is the water. उसके बाद water is getting here. This is the steam drum. This is called the steam drum. Steam drum से water इधर आया and then water will be getting heated. देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है. 1 second. This इधर से water आ चुका है. अब this water will be getting heated here. Actual heating of water. So अब वाटर को हीट करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? स्टीम प्रोड्यूस होगा and that steam will be collected. So what is the input of boiler? The input of boiler is here. One input is high pressure low temperature water. That is the input of boiler. But what is the output of boiler? High pressure and high temperature steam. That is the output of boiler. So via economizer preheated water is coming into the steam drum. Then through this steam drum it will go through through this pipe and then it will getting boiled and the steam will be collected. This red one is the steam and this blue one is the water. Here the water is getting converted into steam and it is collected by this pipe. So input से आ गया water, फिर steam collected into through this pipe. इधर भी same है. This is steam. Now this heated steam is fed into the turbine. So our cycle is closed. But there is one thing. This cycle is called the Rankine cycle, and we will discuss later what is Rankine cycle and what is Carnot cycle. What are the different thermodynamic cycle that we will discuss later. But this cycle, the steam turbine operates on the Rankine cycle. The efficiency of this Rankine cycle is 20 to 25%. This is the efficiency. So efficiency is very low. We have to do something. So that the efficiency will increase. What we can do? We can add these three things. One is superheating, another is reheating, another is feed water heating, and we will discuss one by one. Before that, see here, यहाँ पर देखो,
जो मुझे वाटर मिल रहा था, जो कंडेंस्ड हो रहा था, स्टीम इज गेटिंग कन्वर्टेड हियर, एंड जब द वाटर का जो टेम्परेचर था 40 C एंड जो प्रेशर था 0.1 बार, दैट मींस लो टेम्परेचर लो प्रेशर. ओके, इट इज with the help of this feed water pump, with the help of this feed water pump उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. 0.1 बार से 170 बार में प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, बट टेम्परेचर इज स्टिल लो, and with the help of this boiler its temperature is getting high, pressure is also high, so this high temperature high pressure is getting fed into the turbine. Now what are the three methods? Superheating, reheating and feed water heating. Let us see this superheating at first. देखो पहले क्या हो रहा था, स्टीम ड्रम से, दिस इज द स्टीम ड्रम, स्टीम ड्रम से वाटर थ्रू पाइप बॉयलर के अंदर जा रहा है, फिर दिस वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड देन दैट स्टीम is again superheated. This thing is called the superheater. This thing is called the superheater. Superheater. So in the superheater it is reheating or superheating the steam. Superheating the steam. जैसे इकोनोमाइजर में क्या हो रहा था, दिस इकोनोमाइजर में क्या हो रहा था, इकोनोमाइजर में तुम्हारा वाटर को प्रीहीट कर रहे थे, ठीक है, एंड हियर इन सुपरहीटर वी विल सुपरहीट द स्टीम, we will superheat the steam, okay, by the help of this flue gas, by the help of the heat, by the help of this flue gas. okay, तो सुपरहीट हो चुका है, उसके बाद क्या होगा, सुपरहीटेड स्टीम will be fed into the turbine. This superheated speed, this superheated steam, जैसे देखो ये फ्लू गैस जा रहा है, हीट जा रहा है, और स्टीम को तुम्हारा उसका जो हीटिंग, उसका जो टेम्परेचर, वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. सुपरहीटिंग मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, we are increasing, we are superheating the steam. okay, so that superheated steam will enter into the turbine. The temperature of superheated steam is almost 550 degrees centigrade. The temperature of superheated steam is almost 550 degrees centigrade. Fine. Now this superheated steam is entering into the high pressure turbine. सुपरहीटेड स्टीम क्या हो रहा है, पहले हाई प्रेशर टरबाइन में चला गया, उसके बाद इंटरमीडिएट में जा रहा है, उसके बाद लो प्रेशर में जा रहा है, लेकिन इन बिटवीन स्टीम का टेम्परेचर फॉल हो रहा है, इन बिटवीन स्टीम का टेम्परेचर फॉल हो रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, जो सुपरहीटेड स्टीम था, ये सुपरहीटेड स्टीम जो टरबाइन में गया था, हाई प्रेशर टरबाइन में काम कर लिए, फिर इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में काम कर लिए, फिर उस स्टीम को मैंने कलेक्ट कर लिया, उस स्टीम को कलेक्ट करने के बाद रीहीट कर रहे हैं. दिस इज अ रीहीटर. ओके, that steam is reheated and again that reheated steam will be transferred into the turbine. मतलब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग नॉर्मल वे में बॉयलर्स के थ्रू वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर लिए, फिर दैट स्टीम मैंने सुपरहीट कर रहा हूं, मतलब स्टीम को फिर मैं गर्म कर रहा हूं, स्टीम के अंदर मैं हीट दे रहा हूं. उसके बाद आफ्टर दैट सुपरहीटेड स्टीम मैंने क्या कर रहा हूं, दैट सुपरहीटेड स्टीम को मैंने पहले अपना जो पहला टरबाइन उसमें काम में लगा रहा हूं. पहला टरबाइन में काम में लगाने के बाद फिर स्टीम का टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया, अगेन दैट्स वी आर कलेक्टिंग दैट स्टीम. मैंने पहले टरबाइन में काम में लगाने के बाद जो स्टीम मेरा आउटलेट में आया, दैट स्टीम को मैंने रीहीट कर रहा हूं. आफ्टर रीहीटिंग दैट स्टीम व्हाट वी आर डूइंग, उसको मैंने फिर से कलेक्ट करने के बाद फिर से मेरा जो दूसरा टरबाइन में उसमें भेज रहा हूं. सो इसमें से क्या हो रहा है, इसमें मेरा जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है. So that is part of superheater and that is part of reheater and it is very important for your exam purpose. Last one is the feed water pump. The feed water pump. Feed water pump में क्या हो रहा है? Here the feed water heating.
फीड वाटर हीटिंग में क्या हो रहा है एक्चुअली, जो टरबाइन में जा रहा है, जो टरबाइन में मेरा स्टीम जा रहा है, जो टरबाइन में मेरा स्टीम जा रहा है, लो प्रेशर टरबाइन में जो स्टीम जा रहा है, दैट स्टीम may have some O2, CO2, those things, those gases. That steam may have those gases. Okay, that steam may have those gases. Steam may have those gases. अब ये सब गैस रहेगा तो जो टरबाइन है उसका ब्लेड में दिक्कत आ सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, उस स्टीम को मैंने फीड वाटर पंप में हीट कर रहा हूं। उसका फिगर आई थिंक I may have, let me see, no I don't have here। मतलब फीड वाटर पंप का काम यही है कि जो भी गैस डिसॉल्व है स्टीम के अंदर, we are trying to eliminate that gas to improve the working of the turbine। we have to eliminate that gas, जो भी गैस डिसॉल्व है, O2, CO2, जो भी गैस यहाँ पर डिसॉल्व है, we have to eliminate those things। so these are the 3 important criteria of increasing efficiency। now so this was the main parts of the thermal power plant। another thing is that मैंने जैसे बोले कि this is the condenser। कंडेंसर में क्या हो रहा था, कंडेंसर में स्टीम को कंडेंस करके वाटर में जा रहा था, ठीक है। अब कैसे कंडेंस कर रहा था ना, ये जो पाइप है, इस पाइप में मैंने कोल्ड वाटर भेज रहा था। सी दिस कोल्ड वाटर इज इनलेट थ्रू दिस पाइप एंड अगेन आइदर इन दिस साइड और इन दिस साइड क्या हो रहा है ना, जो हॉट वाटर है ये बाहर जा रहा है। हॉट वाटर मतलब कोल्ड वाटर स्टीम से हीट कलेक्ट करने के बाद इधर से बाहर जा रहा है। This cold water is collecting the heat from the steam and then बाहर जा रहा है। बाहर जाने के बाद ये कूलिंग टावर में जाएगा। ये हॉट वाटर, ये रेड वन इज द हॉट वाटर, ये हॉट वाटर ये कूलिंग टावर में जा रहा है, फिर यहाँ पर कोल्ड होके, यहाँ पर कूल्ड होके फिर आ रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड द कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का फंक्शन क्या है ना, जो हॉट वाटर जा रहा था उसको कोल्ड करने के बाद फिर से भेज रहा हो कंडेंसर में। नाउ दैट इज द पार्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, कैसे बॉयल हो रहा है, कैसे क्लोज साइकिल फॉर्म हो रहा है, दैट इज दिस पार्ट। नेक्स्ट कमिंग टू द अनदर वन। अच्छा, सो लेट्स सी, सौरभ कुमार बानवाल, please unmute yourself। Yes sir। What are the outputs of boiler? बॉयलर का आउटपुट में क्या क्या है, क्या क्या जा रहा है? सर स्टीम और एंड और सर कुछ गैसेस एंड फ्लू गैस एंड और सर कोल, जो सर वेपर जाता है कुछ वाटर का। वेपर मतलब स्टीम। कोल ये होने के बाद क्या होगा? उसके बाद सर उसको सर सुपर हीटर में डालेंगे, वो अलग बात है। जो कोल बार्न होने के बाद क्या होगा? एस बनेगा सर, एस बनेगा। सो आउटपुट्स आर दोस वेस्ट गैस एज स्टीम। अच्छा, ये जो वेस्ट गैस है, हम लोग तो स्टीम पढ़ लिया, अब जो वेस्ट गैस है इसको कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे? वेस्ट गैस को कैसे ट्रीट करेंगे? एनी आइडिया हाउ टू ट्रीट दिस वेस्ट गैस? जो गैस जा रहा है उसको कहां पर भेजेंगे? कोई वैसा है तो उसको सर छोटा छोटा जो जनरेटर है, मतलब कि छोटा छोटा थर्मल पावर प्लांट में सर दे सकते हैं उस स्टीम को सर, जिससे मेरा कम लेवल में उसका यूटिलाइज किया जाए। वो तो स्टीम का यूटिलाइजेशन हो चुका है, अब जो वेस्ट गैस है, जो फ्लू गैस है, उसको कहां पर भेजेंगे? उसको
दिस इज द flue फ्लू gas को गैस। सर उसमें वाटर प्री हीटर में सर, जो सर उसमें बॉयलर में जाने से पहले उसको वाटर को हल्का गर्म करते हैं। हाँ, गरम कर लिया, फाइन, गरम हो गया, प्री हीटर सुपर हीटर सब कुछ हो गया। उसके बाद उसके बाहर बाद छोड़े। सर एक सर, हाँ सर उसको सर एक रहता है प्रिसिपिटेटर कुछ करके आता है सर, उसमें भेजते हैं राइट, जिससे मेरा डस्ट राइट, पार्टिकल रह जाता है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर सर। electrostatic precipitator, right? So this is the, ये फ्लू गैस इधर आ रहा है, दिस इज द फ्लू गैस, ये फ्लू गैस इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर ESP। What is the function of ESP? Anyone please tell me what is the function of ESP, electrostatic precipitator? सर फ्लू गैस को कंट्रोल करता है सर। नहीं, फ्लू गैस को एस को कंट्रोल नहीं कर रहा है, फ्लू गैस एस को में, सर, बोलो, फ्लू एस सर, नॉट जो कि एस। डायरेक्ट बाहर ना निकल जाए सर। ओके, नॉट एस, इट इज एक्चुअली फ्लू गैस के अंदर जो भी एस का पार्टिकल्स है, दैट इज नॉट कॉल्ड द फ्लू एस। ओके, फ्लू गैस के अंदर जो भी एस का पार्टिकल्स है या फिर जो भी डस्ट है, पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल, एस पार्टिकल्स जो भी है फ्लू गैस के अंदर, जो सर कार्बन पार्टिकल है सबको सर उस सर एब्जॉर्ब कर लेता है अपने Right. फिन्स पे। राइट, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होता है, यहाँ पर इसके अंदर देयर इज कैथोड एंड एनोड, देयर इज कैथोड एंड एनोड, so there will be an electric field, not magnetic field, there will be an electric field, and this electric field will electrolyze this particle. Okay, this electric field will be electrolyzed by these particles, and dust will be electrolyzed by the cathode and anode or by the electric field inside the ESP. अब क्या होगा, जो भी particles है, suppose we have cathode and we have anode here, ठीक है, इधर से तुम्हारा फ्लू गैस जा रहा है, इधर से तुम्हारा फ्लू गैस जा रहा है, जो भी डस्ट पार्टिकल और जो भी एस पार्टिकल्स है, इट विल बी कलेक्टेड बाय दिस एनोड और कैथोड, एंड देन द remaining gases, only gases will be the outlet. This is the only gas. So thereby क्या होगा ना, जो एयर में पोल्यूशन होगा वो कम हो जाएगा। ओके, एयर का पोल्यूशन कम हो जाएगा। So this is the function of ESP. This is the function of ESP. It is just हम लोग cleaning the flue gas, हम लोग बोल सकते हैं ESP is cleaning the flue gas basically. Okay, here we have cleaner flages, ash collection, जो भी ash particles है flue gas के अंदर, that will be collected, and this ash is actually called the fly ash. Fly ash. It is not flue ash, it is called the fly ash. Okay, electrostatic precipitation. This is called the fly ash system. मतलब it is the ash is getting collected here, यहाँ पर ash collect हो रहा है, dust particle वो भी collect हो रहा है इधर, ये सब, फिर यहाँ पर जो clean flue gas ये बाहर जा रहा है। So let us show you this video. 1 second. Wait for a moment. ये YouTube दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So let me. A thermal power plant converts the chemical energy stored in fossil fuels into electrical energy that can be used in our homes and business houses. So this is the building. Inside the building, we have this turbine section, and we have the generator section here. Let's यहाँ पर क्या जा रहा है, कोल जा रहा है, फिर कोल पल्वराइज हो रहा है इधर। दिस इज कॉल्ड द कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट से कोल जा रहा है, ये पल्वराइज हो रहा है, छोटा छोटा कोल का टुकड़ा इधर जा रहा है, फिर दैट इस कोल इज गेटिंग बर्न्ड इनसाइड द बॉयलर,
उसके बाद क्या हो रहा है, ये कोल आ रहा है, फिर बर्न हो रहा है, उसके बाद ये जो पाइप है, इस पाइप के अंदर वाटर है, ओके, दिस वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम, ओके, दिस इज कोल. An ingredient in various building materials like concrete, etc. This is actually the ash. This is the one of the output of coal, that is ash. वाटर आने के बाद ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, फिर दैट स्टीम जो है ये टरबाइन का ब्लेड को घुमाएगा, and that turbine will rotate the shaft and then generator. एंड नीचे वाला जो पोर्शन है ये कंडेंसर में जा रहा है, जो ग्रीन वाला. Finally, a transformer converts the उसके बाद दिस इज द ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिसिटी, this is called the power transformer. This is actually the low voltage to high voltage transformer, and this is called the power transformer, which is connected with the grid. Okay. So tell me, what is the function of condenser? What is the function of condenser? हेलो सर वाटर वेपर को सर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, सर जो स्टीम है उसको लिक्विड कंडेंस करना है, फाइन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर? इकोनोमाइजर का फंक्शन क्या है? अनिमा कुमारी, प्री हीट करता है सर, प्री हीट करता है सर. किसको? वाटर को सर. वाटर को. And how to increase the efficiency of a thermal power plant? What are the various processes? How to increase the efficiency by which method? One is called the reheating, and before reheating we have superheating and then feed water heating. Okay, superheating, reheating, and feed water heating. One second, this slide, superheating, reheating, and feed water heating. Superheating में we are superheating the steam, reheating में again we are reheating the steam, and feed water heating में जो फीड वाटर है उसको मैं हीट कर रहा हूं, उसमें जो भी ऑक्सीजन वगैरह ये सब है उसको मैं हीट कर रहा हूं. अच्छा, नाउ वी हैव, मेरा स्क्रीन में कोल हैंडलिंग सिस्टम दिख रहा है? Yes, sir. Okay, so coal handling system. Tell me what is the function of coal handling system? इसका काम क्या है?
क्या हो सकता है इसमें? सर कोल हैंडलिंग में सर जैसे मेरा पावर प्लांट तो सर कंटिन्यूअस उसको हमको चलाना रहता है, मतलब मान लीजिए कि मतलब महीने उसको तो सर स्टार्ट होने में करीबन मंथली लग जाता है। उसको सप्ताह भर शट डाउन मारना पड़ जाता है अगर एक बार मेरा बंद हो गया किसी कारणवश। उसी वो सर मान लीजिए कि जो मेरा कोल है वो किसी हम्म रीजन से मेरा पावर प्लांट तक नहीं पहुंच पाया, हम्म तो मेरा कोल का शॉर्टेज हो जाएगा जिससे मेरा पावर प्लांट मेरा बंद हो जाएगा। तो उसी को सर हम्म मेंटेन करने के लिए कोल का कि जो हम्म मेरा कोल आते रहे इधर, तो लोग स्टॉक में कोल रखता है हम्म कि जिससे मेरा हल्का कुछ इमरजेंसी भी पड़ जाए, जिससे मैं अगर मेरा कॉल नहीं भी पहुंचता है तो मेरा पावर प्लांट कंटिन्यूअस अपना पावर जनरेट करते रहे। तो उसी को ओके सर देख रेख करता है वो लोग, कॉल हैंडलिंग प्लांट वाला। ओके, that is partially true, that is partially true. Simply coal handling system जो तुमने बोला है सही बोला है, लेकिन we can सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं कि बाहर से कोल आ रहा है, उसको हम लोग छोटा टुकड़ा में मतलब पाल्वराइज कर रहे हैं, फिर हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं, आइदर स्टोरेज कर रहे हैं या फिर सीधा बॉयलर में डाल रहे हैं। मतलब तुम वो जो बोले दैट इज द पार्ट ऑफ स्टोरेज, ओके, दैट इज वन पार्ट। बट कोल हैंडलिंग सिस्टम मींस हम लोग पूरा कोल को ला रहा है, फिर स्टोरेज कर रहा है या फिर सीधा डाल रहा है बॉयलर में, ये पूरा सिस्टम इज कॉल्ड द कोल हैंडलिंग सिस्टम, ओके। ओके सर। We can either store it in the dead storage for long time, जैसे कि तुम बोले कि कोल अभी नहीं आ रहा है तो we can store it, that is a part of coal handling system, storing, okay, it is called the storage. But also the total transport हो रहा है, that is one part, then pulverized हो रहा है, that is another part, then उसके बाद हम लोग बॉयलर में जा रहा है through belt, different types of belt, so this whole process is called the coal handling system. ओके सर, Fine. थैंक यू सर। Next, so thereby this is the sequence. In this sequence what we are doing, we are at first we have delivery, coal delivery, coal आ रहा है, कैसे coal कैसे आ सकता है? सबसे easiest way is by train, by train सबसे easiest way, ठीक है, सबसे easiest way by train. Another, ship, शिप से ट्रांसफर हो सकता है, जनरली बाय ट्रेन आता है जो डोमेस्टिक लेवल का है, दैट इज बाय ट्रेन आता है। उसके बाद वन सेकेंड, दिख रहा है स्लाइड, दिख रहा है? यस सर। Okay, so by shipment, ship delivery. Another one is by truck. Another one is by truck or by road, we can say. So that is part of coal delivery. कोल तो आ चुका है प्लांट में, अब उसको कैसे अनलोड करेंगे, उसका प्रोसेस है BOBD, that is called the bogie open bottom discharge. Another is wagon tripler, wagon tripler, इसको देख लेते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड। वन सेकेंड, यूट्यूब दिख रहा है? हेलो? Yes, sir. Okay, so this is the bogie open, bogie discharge.
सिस्टम। क्या हो रहा है यहाँ पर? पहले ट्रेन आएगा इधर, देखो इस जो बॉगी है इसके नीचे कुछ ट्रायंगुलर शेप का एक चीज है, इसके नीचे यस सर, नीचे से ही खुलता है सर। इसी से खुलता है, राइट। लेट मी फॉरवर्ड दिस थिंग। हाँ देखो, ये नीचे जो जाली टाइप का रहता है, नीचे वाला इज कॉल्ड द हॉपर और वन ऑफ द स्टोरेज, ठीक है। जो पूरा कोल है नीचे वाला से, बॉगी के नीचे से डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द बॉगी ओपन, बॉगी डिस्चार्ज। नीचे जा रहा है पूरा कोल। और जो भी पत्थर टाइप का लार्ज कुछ रहेगा तो ये जाली में अटका रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो इधर भी थोड़ा फिल्टर हो रहा है। जैसे कि ये नीचे वाला पोर्शन खुल गया और इधर से ये जा रहा है। जैसे ये जो बड़ा बड़ा कोल है वो पत्थर होगा तो बाहर फेंक दिया जाएगा, लेकिन कोल होगा तो उसे हैमर के थ्रू उसको छोटा करके मैनुअली नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा। ओके, नाउ let us see the wagon tripler. It is one type of coal unloading. Let us see the wagon tripler. यहाँ पर देखो, दिस इज द वैगन ट्रिपलर। सामने वाला बॉगी खाली हो चुका है, अब जो पीछे वाला बॉगी है उसको खाली करेंगे। ये सर पूरा पलट दे रहा है क्या उठा के? हाँ देखो, कभी कोई इसमें जाओगे पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट स्टेशन में, तब देखना ये हम लोग जब विजिट किए थे अपने बीटेक लाइफ में, तब देखे थे पूरा एकदम बहुत अच्छा है ये सब। एक एक करके बॉगी खाली करेगा, टोटल 59 बॉगी शायद जितना बॉगी रहता है, एक एक करके ये जाएगा, फिर बॉगी खलेगा अपना। शायद ये 6 to 7 आवर्स लग जाता है पूरा एक ट्रेन को खाली करने के लिए। जो पीछे वाला बॉगी है उसको अलग कर दिया, सामने से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। बीच वाला बॉगी सेपरेट हो चुका है, अब इसको पलटाएगा पूरा। पूरा रेलवे जो ट्रैक है ये पूरा घूमेगा एकदम, ऑलमोस्ट नॉट 360 डिग्री बट उससे थोड़ा कम होगा। This is actually called the wagon tripler.
ऐसे करके ये खाली कर दिया, फिर इसको आगे ज्वाइन करके लेके जाएगा, फिर पीछे वाला जो है बॉगी वो आएगा ऐसे करके। सो दिस इज द कोल डिलीवरी। नाउ कोल तो अनलोड हो चुका है। अब मेरा स्लाइड दिख रहा है? सर यस सर दिख रहा Yes, है। sir. अच्छा, अब कोल अनलोड हो चुका है। अब उसके बाद प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब कुछ नहीं, मेरे अपना जो साइज का कोल चाहिए उस कोल को चाहिए, मतलब पल्वराइज्ड कोल मुझे चाहिए, छोटा वाला जो भी साइज वो मुझे चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द प्रिपरेशन। उसमें मैं क्या कर रहा हूं, उसमें मैंने व्हाट विल डू दिस वन, क्या कर रहे हैं, पहला अनलोड कर दिए, यहाँ पर डिलीवरी हुआ, पहले डिलीवरी हुआ, उसके बाद अनलोड किए। अनलोड कहां पर किए, एक हॉपर रहता है जहां पर अनलोड होता है, ठीक है। नीचे मतलब नीचे प्लेस हो रहा है, नीचे जा रही है, जो कोल है ना पूरा नीचे जाएगा एकदम, मतलब जमीन के नीचे एक जगह रहता है वहां पर जाएगा। उसके बाद वहां से ऊपर आएगा थ्रू कन्वेयर बेल्ट, वहां से ऊपर आएगा थ्रू कन्वेयर बेल्ट। देयर आर लॉट्स ऑफ कन्वेयर बेल्ट, आई विल शो इफ दिस इज द कन्वेयर बेल्ट। यूट्यूब में सर्च करना कन्वेयर बेल्ट इन थर्मल पावर प्लांट, यू विल गेट दिस इज द कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। इधर से इधर कोल रहेगा, इधर से जाएगा कोल अपना डिफरेंट प्लेसेस में। पूरा पावर प्लांट में कन्वेयर बेल्ट से ही ये जाते हैं, ठीक है। फिर कोल जो आएगा ये पहले क्रैश होगा, कोल क्रैशर, मतलब छोटा टुकड़ा में बढ़ जाएगा, ठीक है, कोल क्रैशर। लेकिन हो सकता है कि कोल के अंदर पत्थर हो या फिर कुछ अलग चीज हो, उसको अलग किया जाएगा। कैसे? थ्रू दिस वाइब्रेटिंग स्क्रीन। मतलब कोल क्रैशर के बाद क्रैश्ड कोल विल बी प्लेस्ड इनटू दिस वाइब्रेटिंग स्क्रीन। यहाँ पर जो कोल का टुकड़ा नहीं है दैट विल बी सेपरेटेड इन द अंडरसाइज्ड हॉपर। जो क्रैश नहीं हो पा रहा है, जो पत्थर है, जो कुछ डिफरेंट चीज है, ये अलग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कोल के साथ कुछ आयरन या फिर फेराइट जैसा चीज रह जाए जो इधर जा रहा है। अच्छा, आफ्टर हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, आफ्टर क्रैशिंग दिस कोल व्हाट वी आर गोइंग, कोल क्रैश होने के बाद वाइब्रेटिंग स्क्रीन में आएगा, जहां पर जो अलग चीज है, जो पल्वराइज नहीं हो पा रहा है, उसको अलग किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, एंड क्रैश्ड कोल को फिर से अपना जो बेल्ट है उसमें लाया जाएगा। यहाँ पर देखो मैग्नेटिक एलिमेंट, इधर एक मैग्नेटिक एलिमेंट है, ये क्या करेगा, जो भी आयरन जैसा चीज है, मतलब जो मैग्नेटाइज्ड होकर अट्रैक्ट हो जाएगा, कोल से अलग हो जाएगा, ठीक है। दिस मैग्नेटिक एलिमेंट विल सेपरेट द iron things or iron ferrite, those things it will separate from the coal, ये कोल से अलग हो जाएगा दिस मैग्नेटिक एलिमेंट। उसके बाद फिर कन्वेयर बेल्ट में जाके स्टोरेज में जाएगा। सो देयर आर क्या हो रहा है, पहले डिलीवरी, उसके बाद अनलोडिंग, उसके बाद डिफरेंट बेल्ट सिस्टम के थ्रू कोल क्रैशर में जाएगा। देयर विल बी प्राइमरी क्रैशर एंड सेकेंडरी क्रैशर। ज्यादातर लार्ज पावर प्लांट में दो तरीके से क्रैशर रहता है। वन इज प्राइमरी क्रैशर, पहले कुछ अपना साइज में क्रैश कर लिया, फिर उसके बाद सेकेंडरी क्रैशर में जाएगा। कब ना, बॉयलर में जाने से पहले सेकेंडरी क्रैशर में जाएगा, ठीक है। सो पहले डिलीवरी हुआ, फिर अनलोड हुआ, फिर बेल्ट के थ्रू प्राइमरी क्रैशर में गया, फिर उसको जो भी आयरन का चीज है उसको मैग्नेटिक एलिमेंट से सेपरेट कर दिया गया, उसके बाद स्टोरेज में गया, ठीक है। अब स्टोरेज के थ्रू जब बॉयलर में जाएगा, देयर विल बी सेकेंडरी क्रैशर, उसको फिर से क्रैश किया जाएगा, फिर बॉयलर में भेजा जाएगा। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज, वन इज कॉल्ड द लाइव स्टोरेज
and another is called the dead storage, live storage and dead storage. I think storage, live storage and dead storage. लाइव स्टोरेज मतलब कुछ नहीं, एक ही दिन काम चलाने के लिए एक स्टोरेज, मतलब मैंने आज ट्रेन से आया, कल ये कोल चला जाएगा बर्नर में, बॉयलर में, तो एक कुछ घंटे के लिए मुझे उसको स्टोर करना है, दैट इज कॉल्ड द लाइव स्टोरेज. एंड डेड स्टोरेज, जैसे कि फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, या फिर बहुत सारा कोल आ चुका है, या फिर अभी उस दिन के लिए कोल नहीं आएगा, मुझे स्टोर करने के रखना है, दैट इज कॉल्ड द डेड स्टोरेज. दैट इज कॉल्ड द डेड स्टोरेज. That is for long hour or long days, and live storage is for few hours, कुछ घंटे के लिए इसको मैं स्टोर कर रहा हूं, उसके बाद फिर ये काम में लाया जाएगा. Now see, for internal transport के लिए यहाँ पर different types of belt रहता है. This is conveyor belt conveyors रहता है, या फिर bucket elevator, skip hoist, different types of conveyor belt, different types of things. Okay, इसका एक नोट मैं दे दूंगा छोटा करके, इसका देख लेना. This is called the conveyor belt. And ये जो कन्वेयर बेल्ट है ना, कन्वेयर बेल्ट इधर से इधर जा रहा है, मतलब बीच में कोई मोटर लगा हुआ है, ठीक है. One important question is that which motor is connected here? Which motor is connected here? That is one of the important question. Now second is that चलो ठीक है, आज ऐसे इतना था, रहने दो. उसके बाद अगले दिन हम लोग देखेंगे कैसे डीवाटरिंग ऑफ कोल, स्टोरेज ऑफ कोल के ऊपर थोड़ा नोट्स देखेंगे. उसके बाद हम लोग जो बेसिक कंबशन, बेसिक रिक्वायरमेंट, ये सब कुछ आगे हम लोग जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. ओके, इज इट ओके? कुछ आज कुछ डाउट, एनीथिंग? वी हैव स्टडीड टुडे दैट व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स, क्या साइकिल है, हम लोग कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है, उसका रीहीटिंग क्या है, इकोनोमाइजर क्या है, ये सब देख लिए. इसका नोट्स मैं दे दूंगा गूगल क्लासरूम में. सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ, उसके बाद जो भी लिखना है एग्जाम के लिए वो तो पढ़ लोगे. और उसके बाद कैसे कोल डिलीवरी हो रहा है, कोल अनलोड हो रहा है, ये सब कुछ डिफरेंट मेथड्स. उसके बाद हम लोग कोल हैंडलिंग प्लान को अगले दिन खत्म कर लेंगे. उसके बाद ऐश हैंडलिंग प्लान को देखेंगे. उसके बाद जो सिलेबस में बाकी पूछे वहां पर जाएंगे. ठीक है, एनी क्वेश्चन? सर कंडेंसर का सर यूज नहीं करेंगे तो मेरा काम नहीं होगा क्या? कंडेंसर को यूज नहीं करोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा क्या, ये बोल रहे हो ना? यस सर, क्योंकि सर एक्चुअली तो हमको तो वेपर ही चाहिए रहता है. अब वेपर को सर फिर वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको सर अगर नहीं भी यूज करेंगे तो अगर वेपर दे देंगे तो फिर चलना चाहिए. हाँ चलेगा, दैट इज कॉल्ड द ओपन साइकिल प्लांट. ओपन साइकिल हो जाएगा. लेकिन तुम बाहर से बार बार वाटर लोगे, ये अच्छा है, या फिर जो तुमको स्टीम मिल रहा है उसको अगेन काम में लोगे? कौन सा अच्छा है, कौन सा है मोर एफिशिएंट? वाटर तो बाहर से मेरे पास वाटर प्लांट है, वहां से मैं हमेशा वाटर ले रहा हूँ, लेकिन एक ना एक दिन तो खत्म होगा. तो अच्छा है. तो मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए जहाँ कंडेंसर जो पाइप में मेरा सेट हुआ है उसको हम कंडेंसर नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं. मतलब कहाँ पर एक्चुअल में हमको तो वेपर ही चाहिए सर. अच्छा, तुमको वेपर ही चाहिए? हाँ, तो सर कंडेंसर का यूज तो हम लोग सर वेपर को वाटर में कन्वर्ट के लिए करते हैं. तो सीधे सर वेपर को बॉयलर में भेज देते हैं. अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं सर. मतलब जो वेपर मुझे मिल रहा है उसको मैं फिर क्यू वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये बोल रहे हो? यस सर, बिल्कुल सर. हाँ देखो, एक सेकेंड, लेट मी शेयर दिस स्लाइड. वन सेकेंड. जैसे कि दिख रहा है स्लाइड? यस सर, दिख रहा है सर. हाँ, मुझे वेपर चाहिए, स्टीम चाहिए, फाइन. उस स्टीम का नेचर क्या होना चाहिए? उस स्टीम का नेचर होना चाहिए टरबाइन को घुमाएगा. टरबाइन को घुमाएगा मतलब एक भारी चीज, उसको घुमाने के लिए उसका प्रेशर हाई होना चाहिए. हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सर, एंड टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए. ठीक है? यस सर.
अब जो स्टीम मुझे मिल रहा है, एक पॉइंट ये कि उस स्टीम काम होने के बाद उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत लो हो चुका है। सेम Yes, स्टीम sir, को होता है। जो लो हो चुका है, सेम स्टीम को मैंने फिर मतलब जो इकोनोमाइजर स्टेशन जो भी जहां पर है, जो भी रीहीटर सुपरहीटर स्टेशन, यहाँ पर कैसे भेजेंगे, कैसे जो स्टीम का जो है टेम्परेचर प्रेशर है लो हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, उसको मैं दोबारा जो दूसरे जगह पे भेजूंगा, ऑलरेडी उनका उसका प्रेशर ये सब कुछ लो है, उसको दोबारा दूसरे जगह पे कैसे भेजेंगे, हीट कैसे करेंगे मैं उसको, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू वाटर, मैं उसको हाउ कैन वी ट्रांसपोर्ट, मुझे उसको तो फिर से दोबारा हीट करना है, मुझे उसको फिर से उसका प्रेशर इंक्रीज करना है, मैं उसको प्रेशर कैसे इंक्रीज करूंगा स्टीम का, फिर से गरमा देंगे सर, उसमें डाल देंगे ना इकोनोमाइजर में, तो गर्म हो जाएगा ना। गर्म होगा, प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा, सर नहीं पता सर, वही तो पूछ रहे सर, कंफ्यूजन था इसलिए। प्रेशर इंक्रीज नहीं कर सकते स्टीम का, ठीक है, स्टीम का जो है उसका प्रेशर इंक्रीज नहीं कर सकते, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, टेम्परेचर मैंने उसको स्टीम को किसी भी तरीके से सोचो, मैंने बाहर लेके गया, फिर सुपर हीटर जो भी चीज है उसको हीट कर दिया, फिर टेम्परेचर तो इंक्रीज हो गया, लेकिन मुझे तो प्रेशर भी चाहिए इंक्रीज करने के लिए, प्रेशर को कैसे इंक्रीज करेंगे, स्टीम का प्रेशर तो इंक्रीज नहीं होगा। नहीं सर, तो सर जो है वही रह जाएगा उसका, सर वहाँ कांस्टेंट रह जाएगा। हाँ, तो मुझे ये जो टरबाइन मिला, इस टरबाइन का भारी चीज है, उसको घुमाने के लिए एक हाई प्रेशर मुझे चाहिए ना, हाई प्रेशर स्टीम चाहिए, तो प्रेशर तो इंक्रीज करने के लिए मुझे उसको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा वाटर में, फिर मैं उसको प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा, फिर स्टीम में फिर कन्वर्ट कर दूंगा। there is one process to increase this pressure of the steam. One is this nozzle, another is मैंने जो बोला भूल गया था, that is one second, that is called the compressor। मुझे अचानक से याद आया क्योंकि हम लोग ये इसको देखे थे गैस टरबाइन पावर प्लांट में, कंप्रेशर, we can compress the steam to increase the pressure, we can compress the steam, okay, दिख रहा है स्क्रीन, हेलो Yes, sir. हाँ, we can compress the steam to increase pressure of the steam, okay, to increase the pressure of the steam, but then the question still lies here that why we convert steam into water then, इसमें क्या होगा, कंप्रेशर में स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, सीधा स्टीम को कंप्रेस कर देंगे तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बट देयर इज वन प्रॉब्लम, क्या है, ये कंप्रेशर एक रोटर टाइप का चीज है, ये जो कंप्रेशर है ना, इट इज एक रोटर टाइप का चीज है, हम लोग गैस टरबाइन में देखे थे, कंप्रेशर को घुमाने के लिए टरबाइन चाहिए, टरबाइन इसको घुमा रहा है, कंप्रेशर को टरबाइन घुमाएगा, कंप्रेशर विल बी रोटेटेड बाय द टरबाइन, तो क्या होगा, टरबाइन का जो मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू कंप्रेशर, मतलब कंप्रेशर तो एक तो टरबाइन जनरेटर को घुमा रहा है, और टरबाइन फिर से कंप्रेशर को भी घुमाने लगेगा, तो ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी कंप्रेशर में चला जाएगा, that's why we try to avoid this compression, that's why हम लोग सीधा सबसे अच्छा तरीका उसको ये कर दो भाई, कंडेंस कर दो, वाटर में बदल दो, फिर पंप चलाकर छोड़ दो, अदरवाइज ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट का एफिशिएंसी बहुत कम है, फिर भी मैं मैकेनिकल एनर्जी को फिर मैं कंप्रेशर में डाल दूंगा, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा स्टीम कंप्रेस करने के लिए, सो दैट वी लाइक टू अवॉइड, okay, that is one way to increase the pressure of the steam, which generally we use in the gas turbine, closed cycle gas turbine और gas power plant, but thermal power plant में हम लोग सबसे आसान तरीका यही है, स्टीम का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए उसको वाटर में बदल के फिर चेंज करना, अदरवाइज compression is tried to be avoided, okay, is it okay?
Yes, sir. Okay, now we can leave for the day. Thank you. Our main purpose of converting steam into water is mainly to have increment in pressure. So जो water मुझे मिल रहा है उसका pressure में increase कर सकता हूँ. Water का pressure में increase कर सकता हूँ via some pump. यस सर, पंप से कर सकते हैं. हाँ, पंप की तरह से हम लोग जो पंप यहाँ पर देखे, लो प्रेशर वाटर लिए, फिर उसको बहुत जोर से एक पाइप के थ्रू मैंने उसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया, फाइन हो चुका है. लेकिन स्टीम का प्रेशर इंक्रीज कर, मुझे टेम्परेचर हाई मिल गया स्टीम का, ठीक है, लेकिन किसी भारी चीज को घुमाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए. ज्यादा फोर्स मतलब ज्यादा प्रेशर. देखो, यस सर. और एक चीज जैसे तुम बोले ना, और एक चीज यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, स्टीम का जो नजल होता है ना, ऐसा रहता है जनरली. इसमें क्या होता है, जो मुझे स्टीम मिल रहा है, एक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम मिल रहा है, छोटा मूव होने से क्या होता है, उसका भी प्रेशर और भी इंक्रीज हो जाता है. तो स्टीम का प्रेशर हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ना, छोटा नजल यूज करके. जो स्टीम मुझे मिल रहा है, छोटा नजल यूज करके मैं स्टीम का प्रेशर यूज कर रहा हूँ. लेकिन उसके बाद पूरा काम होने के बाद, टरबाइन को घुमाने के बाद जो आउटलेट में मुझे स्टीम मिल रहा है, दैट उसका प्रेशर इंक्रीज करने के लिए आई हैव टू कन्वर्ट दिस. ओके, क्लियर हुआ डाउट? Any more question? No, sir. Okay, and I will share this slide with you and any other notes जो भी यहाँ पर है, super heater, economizer, ये सब का notes I will share with you. Fine, thank you. And then let me stop.